Okay, so today we are going to discuss concrete mix design, which is about selecting proportions for concrete, proportions of different ingredients of concrete. So this is the report by ACI Committee 211. 211 is the committee number, and the document number is ACI 211.1-91, originally approved in 1991 and then reapproved in 2009. This point one means this is the first document of 211 committee, and ACI 211 committee has several technical reports. One of these reports is this 211.1. So we are going to discuss how to choose or how to select proportions of concrete based on this document. So we are going to follow exactly what this document say, and we are going to stick to the recommendations given in this document. So I'll be sharing this document with you, and I hope you will read it later on. So today we need to discuss, well the first thing to know is that the objective of concrete mix design is to make sure that you achieve certain properties of concrete, and you need to choose the ingredients proportion such that you achieve those objectives. Now there are different objectives that a concrete has to achieve. It has to achieve certain minimum workability or placeability, so you can easily place it in the formwork, and you need to make sure that it achieves certain minimum strength, maybe at 28 days, and then you also need to make sure that the concrete that you produce will be durable enough. It will be able to resist the action of environmental exposures, especially if it is concrete that would be exposed to the environmental action, such as acid attacks, such as alkali silica reaction, and many other aggressive actions that can happen because of the exposure of concrete. इसका मतलब ये कि हमें कुछ टारगेट प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि जो कंक्रीट हम बनाने जा रहे हैं हम उससे क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, व्हाट स्लम्प वी वांट from our concrete, so that similarly what strength do we need, so we need to pick the strength, we need to pick a certain target slump, we need to pick certain durability performance, and so on. So the first thing to start is, as per this document, is to choose the slump. यानी अभी आपने calculate नहीं करना, you just need to select what slump would you like to achieve. Now this is normally specified in the project. ये किस स्टेज पे हो रहा होगा? डिजाइन हो चुका होगा, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका है, वो अपनी बिल्डिंग बनाने जा रहा है. कॉन्ट्रैक्टर को ये भी पता है कि मैंने मटेरियल कहां से लेना है, सीमेंट भी उसका स्पेसिफाई हो गया जो उसने यूज कर रहा है एक्चुअल में, उसका एग्रीगेट, उसका फाइन एग्रीगेट, उसका वाटर जो जहां से यूज करना है, हर चीज उसकी स्पेसिफाई हो गई है. अब उसका क्वेश्चन आ गया कि मैं इसको कैसे प्रोपोर्शन करूं ताकि मेरी वो रिक्वायरमेंट मीट हो जाए. ये यानी डिजाइनर एक और काम, डिजाइन करने वाला कोई और बंदा है, मिक्स को डिजाइन करने वाला कोई और बंदा होगा, ये अलग लोग होंगे. प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस में एक खास स्लम्प मेंशन्ड होगा कि जब ये स्लैब पोर की जाएगी तो इसका स्लम्प इतना होना चाहिए, उस कंक्रीट का स्लम्प इतना होना चाहिए, ये स्पेसिफाइड होगा. हाँ, ये अलग बात आप डिस्कशन कर सकते हैं कि वो जो स्पेसिफाई किया जाएगा वो किस बेस पे किया जाएगा, ठीक, वो डिपेंड कर रहा होता है. जो मैंने यहाँ पे चीजें लिखी हैं, अब यहाँ से अब आपको शायद बात समझ आनी शुरू हो जाए. स्लम्प इज यूजुअली स्पेसिफाइड इन द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन. इसलिए हमने ऊपर क्या लिखा है, चॉइस ऑफ स्लम्प. हमने डिटर्मिनेशन का वर्ड नहीं यूज किया, हम डिटर्मिन नहीं करने जा रहे, हम कह रहे हैं चॉइस ऑफ स्लम्प, चूज योर रिक्वायरमेंट. किस तरह की स्लम्प आपको, कितनी स्लम्प चाहिए आपको. अब ये स्लम्प जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में ऑलरेडी स्पेसिफाइड होगी. आप अगर मिक्स डिजाइनर हैं, आप मिक्स डिजाइन करने जा रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर आपको बताएगा कि मुझे जो प्रोजेक्ट मिला है उसके स्पेसिफिकेशन में ये मेंशन है कि मुझे इतना स्लम्प चाहिए, यानी ये गिवन डेटा होगा. मिक्स डिजाइनर के लिए इट्स गिवन डेटा. हाँ, जिसने स्पेसिफाई किया वो किस बेस पे स्पेसिफाई करता है, दीज आर द थिंग्स व्हिच डिक्टेट कि वो किस बेस पे, यानी ये भी तो नहीं ना कि वो प्रोजेक्ट जो स्पेसिफिकेशंस बनाने वाला है वो एम ही कहते हैं मुझे 8 इंच की स्लम्प चाहिए. अब वो कहाँ से लाया 8 इंच की स्लम्प, समझ रहे ना, यानी वो किस बेस पे डिसाइड करेगा. दीज आर द थिंग्स. द चॉइस ऑफ स्लम्प डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन. आरसीसी बीम है, कॉलम है, कॉलम में कास्टिंग ऊपर से एक हाइट से आनी है, बीम में एक छोटी सी हाइट के अंदर उसको स्प्रेड करना है. आप उसकी कंपैक्शन कैसे करने जा रहे हैं, वाइब्रेटर यूज करेंगे, आप क्या यूज करने जा रहे हैं. वो अगर फुटिंग है, फुटिंग खासतौर से जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है उनकी फुटिंग आइसोलेटेड, हर कॉलम के नीचे एक फुटिंग बनाने के बजाय पूरी एक स्लैब जिसको राफ्ट
फुटिंग कहते हैं, वो बना दी जाती है, उसी से सारे कॉलम पर इकट्ठे ऊपर खड़े किए जाते हैं। उसमें नॉर्मली बहुत कंसनट्रेटेड नहीं क्या, कंजेस्टेड रीइंफोर्समेंट, यानी बार्स बहुत करीब करीब होती है। तो अगर बार्स के बीच में क्लियर स्पेसिंग कम होगी तो उसके अंदर पोरिंग करना उतनी मुश्किल होगी ना। इसका मतलब है जितनी ज़्यादा कंजेस्शन होगी आपको उतना फ्लोएबल कंक्रीट चाहिए होगी, उतनी ज़्यादा आपको स्लम्प चाहिए, ताकि वो उस छोटे स्पेसेस में से गुजर के नीचे अच्छी तरह से पहुंच के कंसोलिडेट भी हो सके। सो एक तो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा स्टील कितना कंजेस्टेड है, मेंबर। अच्छा, दूसरे ये भी मेंबर के साइज का फ़र्क होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी 2 इंच की थिक स्लैब है, वैसे समझाने के लिए, या 3 इंच की थिक स्लैब मैंने बनानी है, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा फ्लोएबल कंक्रीट चाहिए, वरना वो आप उसको सही तरह से कंपैक्ट नहीं कर सकेंगे। बड़ा साइज का होगा मेंबर, उसको कंपैक्ट करना आसान है। या इसी तरह अगर छोटा बीम है, छोटी आपके क्रॉस सेक्शन उसके छोटे हैं, विड्थ छोटी है, तो फॉर्मवर्क के बीच में स्पेसिंग कम होगी, अगेन आपको फिर कंजेशन का प्रॉब्लम आएगा। तो जो आखिरी बार होती है ना बीम की, जिसका फॉर्मवर्क से कोई फासला होता है, तो अगर वैसे ही आपके पास फॉर्मवर्क भी छोटा है और बीच में बार्स आ गई तो अब और ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इस केस में आपको स्लम्प ज़्यादा चाहिए, यानी स्पेसिफाई करने वाला भी किसी बेस पे स्पेसिफाई करता है। इसी तरह मोस्ट प्रोजेक्ट्स में जो आपको नॉर्मल टिपिकल प्रोजेक्ट में इस तरह की बिल्डिंग्स की बात करूँ, वो 2 से 3 इंच आपको स्पेसिफाइड होगा, 3 इंच होगा, 2 इंच होगा, या बहुत किसी का ज़्यादा हुआ तो 4 इंच पे राफ्ट वगैरह पे चला जाएगा। नॉर्मली इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये चॉइस ऑफ स्लम्प मिक्स डिज़ाइनर के लिए इट्स अ गिवन डेटा। नेक्स्ट, चॉइस ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। ये भी आप अगर मिक्स डिज़ाइनर हैं तो आपने स्पेसिफाई नहीं करना, आपको प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में मेंशन होगा। वैसे इसका ताल्लुक किस चीज़ के साथ है? अगेन बीम के क्रॉस सेक्शन के साथ ताल्लुक है। बड़ी बीम में आप बड़ा एग्रीगेट साइज रख सकते हैं, बड़े कॉलम में बड़ा एग्रीगेट साइज, छोटा कॉलम होगा उसमें बड़ा एग्रीगेट साइज रखेंगे तो आप कंसोलिडेट नहीं कर सकेंगे उसको। इसी तरह से कि अगर आपकी बार की स्पेसिंग ज़्यादा आपके पास अवेलेबल है तो आप बड़ा एग्रीगेट यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास स्पेसिंग कम है तो आपको छोटा एग्रीगेट यूज़ करना पड़ेगा। मोस्ट केसेस में जो एग्रीगेट आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर्स में मिलेगी वो 3/4 इंच मैक्सिमम साइज़ की होगी। आप बाहर जाके कभी सप्लायर के पास जाए ना, क्रशर जो डीलर होते हैं, तो वो ये 1.25 इंची बोलते हैं, आधी इंची 1.25 इंची, तो ये 1.25 इंची आप लोकल लैंग्वेज, अच्छा आप लोग तो सॉरी SI वाले हैं, 19 मिलीमीटर, ठीक है 19 मिलीमीटर। लेकिन ये 19 मिलीमीटर आप किसी डीलर को नहीं कह सकते कि मुझे 19 मिलीमीटर मैक्सिमम साइज एग्रीगेट का मुझे क्रश दे दो, ठीक है, वो आपको उसको 1.25 इंची बताना पड़ेगा। एनीवेज ये दोनों अगेन ये क्या है, इनपुट, 2 चीज़ें इनपुट हो गई, स्लम्प, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। नेक्स्ट, अब हम एक कैलकुलेशन में जाने लगे। ये अब 2 जो इनपुट आ गई ना, इनसे हम एक आउटपुट निकालने जा रहे हैं कि इन 2 डिसीजंस की बेस पे दिस इज आवर डिसीजन। नेक्स्ट, थर्ड डिसीजन, थर्ड जो स्टेप है, थर्ड स्टेप है किस चीज का, एस्टिमेशन ऑफ मिक्सिंग वाटर एंड एयर कंटेंट। जितना आपको ज्यादा स्लम्प चाहिए, आपको क्या ख्याल है, उस हिसाब से हमें पानी ज्यादा चाहिए होगा या नहीं? अगर मैं कहूं कि मुझे ज्यादा स्लम्प चाहिए, ज्यादा फ्लोएबल कंक्रीट चाहिए, तो पानी ज्यादा होगा या कम? जस्ट वैसे आपके माइंड में क्या आता है? सॉरी, ज्यादा पानी चाहिए होगा। अच्छा ठीक है, इसको देखते हैं टेबल में क्या चीज़ है। अच्छा ये इस तरफ यूएस कस्टमरी, लेकिन आप लोग तो चलो इसको ज़रा पसंद नहीं करते हो, ऐसा ही में आपको दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने चूज़ किया स्लम्प 50 मिलीमीटर चाहिए पहला स्टेप में, दूसरे में हमने ये चूज़ कर लिया कि हमें मैक्सिमम साइज हमारा 19 मिलीमीटर होगा। अच्छा, इनकी बेस पे लेट्स सी कि हमें मिक्सिंग वाटर कितना चाहिए होगा। टेबल को ज़रा देखिएगा, टेबल का लेआउट को ज़रा पहले समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। यहाँ लिखा हुआ है स्लम्प, यहाँ से आपने शुरू हो जाना है। आपको स्लम्प चाहिए 50 मिलीमीटर और यहाँ जो रेंज है वो 25 से 50 है, तो हम यहाँ फॉल कर रहे हैं। ठीक, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। उसके बाद आपने इस कॉलम में देखना है, ये जो आपको ये वाला कॉलम नज़र आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना है आपका। ये 9.5 मिलीमीटर है, 12.5 मिलीमीटर है, 19 मिलीमीटर। हमारा 19 मिलीमीटर है, तो हमने यहाँ से 19 मिलीमीटर चूज़ किया, यहाँ से हमने इस रो को चूज़ कर लिया, तो ये 190 पे हम पहुँच गए। ये 190 क्या है? 190 kgs ऑफ वाटर आपको एवरी 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट चाहिए, यानी हर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट में 190 kgs आपको वाटर चाहिए। अगर आपको 50 मिलीमीटर का स्लम्प चाहिए और आप 19 मिलीमीटर का मैक्सिमम एग्रीगेट साइज यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये बात तो आपको समझ आ रही है कि मसलन में एक गिवन एग्रीगेट साइज, मसलन इसी 19 को देखिएगा, अगर यही 19 मिलीमीटर के साथ मुझे 75 मिलीमीटर का स्लम्प चाहिए हो, तो फिर मैं ज़्यादा पानी डालता हूँ, 205 kgs पर मीटर क्यूब कर देता हूँ।
अगर उससे भी ज़्यादा चाहिए हो तो फिर 216, यानी जितना मुझे स्लम्प ज़्यादा चाहिए नेचुरली मुझे उतना वाटर कंटेंट ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि फ्लोएबल कंक्रीट बने, जितनी ज़्यादा फ्लोएबिलिटी हो उसकी। दूसरा आप देखें, अगर एक गिवन अगर आपको स्लम्प चाहिए हो, मसलन ये 20 to 50, 25 to 50 वाला चाहिए हो, तो जैसे जैसे आप एग्रीगेट साइज बड़ा करते जा रहे हैं आपकी रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है। डू यू सी दिस? लुक एट दिस। मुझे अगर 20 to 50 का स्लम्प मुझे चाहिए और मैं मैक्सिमम एग्रीगेट साइज 9.5 मिलीमीटर यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे 207 kgs पर मीटर, 207 kgs ऑफ वाटर चाहिए हर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट में। अगर मुझे 12.5 के साथ मैं यही स्लम्प बनाना चाहूँ, यही स्लम्प अचीव करना चाहूँ, तो मुझे 199 चाहिए। अगर मुझे 50 मिलीमीटर का साइज में यूज़ करूँ और मुझे 50 मिलीमीटर का स्लम्प चाहिए तो मुझे और ज़्यादा इससे आपको क्या नज़र आ रहा है? मैक्सिमम एग्रीगेट साइज जितना बड़ा होता जाता है तो आपको एक गिवन स्लम्प को अचीव करने के लिए थोड़ा पानी डालना पड़ता है। वो क्यों? यस, सरफेस एरिया। जितना आपका एग्रीगेट का साइज बड़ा होता जा रहा है, चूंकि फ्रिक्शन डेवलप होनी है सरफेस के ऊपर, तो सरफेस एरिया जितना कम होगा, बड़ा साइज का सरफेस एरिया कम होता जाएगा, लिहाजा जो फ्रिक्शन है, जो रेजिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स हैं, वो उतना कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, इसी टेबल से हमें एक और चीज पता चल जाएगी, अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ इंट्रैप्ड एयर इन नॉन एयर एंट्रेन्ड कंक्रीट। अच्छा, ये सारा हम नॉन एयर एंट्रेन्ड की बात कर रहे हैं। एयर एंट्रेन्ड कंक्रीट का तो पता होगा ना आपको, जिसमें आप डेलिबरेटली कुछ एक मिक्सचर डाल देते हैं, एयर एंट्रेन्ड मिक्सचर, ताकि आप माइक्रो साइज के बहुत सारे बबल्स उसके अंदर बना सकें, फ्रीज एंड था को रेजिस्ट करने के लिए। तो हम कोई ऐसा मिक्सचर नहीं डाले नॉन एयर एंट्रेन्ड कंक्रीट, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एयर एंट्रैप हो जाती है। जितनी भी आप कंपैक्शन कर लें, कुछ ना कुछ एयर एंट्रैप हो जाती है। तो हमें ये टेबल बताएगा कि हमारे केस में 2% उसमें एयर एंट्रैप हो जाएगी, यानी एक तरह का एस्टिमेट है, ये अप्रॉक्सीमेट इसलिए लिखा हुआ है, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ एंट्रैप्ड एयर। अच्छा, यहाँ से हमें दो चीज़ें मिल गई। अच्छा, कंक्रीट में वैसे रिकॉल कर लें क्या क्या चीज़ें होंगी? सीमेंट होगा, पानी होगा, फाइन एग्रीगेट होगा, कोर्स एग्रीगेट होगा, और बस नॉर्मल कंक्रीट, बस कोई एडमिक्सर वगैरह नहीं है। ठीक है, नॉर्मल कंक्रीट विदाउट एडमिक्सर। मैथ के लिहाज से तो ये 3-4 चीजें हैं, मैथ जिन चीजों का मैथ है, लेकिन वॉल्यूम के लिहाज से एक 5वीं चीज भी है। एक 5वीं चीज भी कंक्रीट में होती है जिसका मैथ तो नहीं होता, लेकिन कुछ वॉल्यूम, एयर। यस, दिस 5th थिंग इज द एयर। अगर आप वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो वो जो स्पेस इन चारों ने नहीं ऑक्युपाई की, वहां पे क्या होगी? एयर। पानी आपने डाल दिया, जब वो एवोपरेट हो गया तो पीछे क्या बचेगा? एयर। ऑलराइट, सो वी नो दीज थिंग्स फ्रॉम दिस टेबल। 190 kg पर मीटर क्यूब ऑफ वाटर चाहिए होगा और 2% हमें एंट्रैप्ड एयर चाहिए, सॉरी चाहिए नहीं होगी, ये बनेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशो। हम सिलेक्शन ऑफ सीमेंट नहीं कह रहे, हम क्या कह रहे हैं? सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशो। वाटर सीमेंट रेशो का डायरेक्ट तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन रिलेशनशिप है विद द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगर आपको स्ट्रॉन्गर कंक्रीट चाहिए तो आपको वाटर सीमेंट रेशो कम करना पड़ेगा। अगर आपको वीकर कंक्रीट चाहिए, यानी कम स्ट्रेंथ की कंक्रीट चाहिए, तो आप वाटर सीमेंट रेशो ज्यादा कर सकते। ये वाटर सीमेंट रेशो का बढ़ाने से स्ट्रेंथ क्यों कम हो जाती है? यस, वाटर जब इवेपोरेट करेगा तो पोर्स बनेंगे। पोर्स भी सीमेंट पेस्ट में पोर्स की बात हो रही है। आप पोर और वॉइड का फर्क समझते हैं ना? वॉइड होगा जो बिटवीन, यानी एक है आपका कोर्स एग्रीगेट, एक है आपका फाइन एग्रीगेट। इन सॉलिड्स के बीच में जो स्पेस है दैट इज वॉइड। या जैसे आप एग्रीगेट डालते हैं ना किसी कंटेनर में, तो उसको एग्रीगेट सारे की सारी स्पेस तो नहीं भर सकता ना, तो बिटवीन जो एग्रीगेट पार्टिकल स्पेस है उसको हम वॉइड बोलते हैं। और विद इन एक एग्रीगेट पार्टिकल, एक सीमेंट पेस्ट को आप उठा के देख ले, उसके अंदर जो स्पेसेस हैं, ये दोज आर कॉल्ड पोर्स। ऑलराइट, सो वो जो सीमेंट पेस्ट है उसके पोर ज्यादा बनेंगे जितना आपका वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होगा। दैट्स ट्रू। अच्छा, लेट्स से हमें 4000 psi की कंक्रीट अच्छा, इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको। FC प्राइम जो डिजाइनर ने स्पेसिफाई किया वो है 4000, ऐसा ही है, या चलो आपके केस में 30 मेगापास्कल चले। अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो इसी को टारगेट करने लग जाए कि मैं 30 को टारगेट करता हूं, तो क्या नुकसान होगा? देयर इज अ हाई चांस
कि वो अंडर स्ट्रेंथ कंक्रीट बना देगा, यानी उसका जो ACA की रिक्वायरमेंट्स जो चेक्स उसके ऊपर लगनी है वो उसको मीट नहीं कर सकेगा। ठीक है, अगर वो एवरेज को ही टारगेट करेगा तो जो ACA की रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो 28 दिनों बाद उसके सिलेंडर जब लैब में आएंगे, जब रिपोर्ट बनेगी, जब वो FC प्राइम और कंपैरिजन होगा उसका, जो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो जो चेक्स लगने हैं उन चेक्स को फेल करने का चांस ज़्यादा होगा अगर वो टारगेट करे उसी स्ट्रेंथ को जो उसको स्पेसिफाई करके दी गई। लिहाजा उसको अपना जो स्पेसिफाइड सिलेंडर स्ट्रेंथ है उससे जो वो अपना टारगेट स्ट्रेंथ उससे बड़ा रखेगा। कितना बड़ा रखेगा उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाद में। लेकिन यहाँ पे इस टेबल में जो आपने देखना है वो स्पेसिफाइड सिलेंडर स्ट्रेंथ को नहीं देखना। ये जो 4000 को मैंने सर्कल किया, ये 30 को, ये स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, स्पेसिफाइड सिलेंडर स्ट्रेंथ नहीं है, ये टारगेट सिलेंडर स्ट्रेंथ है, जो कि थोड़ा सा हायर वैल्यू होगी कंपेयर टू दी स्पेसिफाइड सिलेंडर स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर आपको वैल्यू नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगे, इन्हीं 4000 चल रहा है, 5000 चल रहा है या 35-30 चल रहा है तो बीच में होगा, तो फिर क्या करेंगे, इंटरपोलेट करेंगे ना। अगर आपको मसलन टारगेट स्ट्रेंथ आ जाती है 33.5 तो आप क्या करेंगे, अब इसमें 33.5 तो नहीं है ना, आप इंटरपोलेट करेंगे। ठीक, वो इंटरपोलेशन होपफुली आपको आती होगी। अच्छा, वाटर सीमेंट रेशियो भी स्पेसिफाई हो गया। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट सीमेंट कंटेंट। सीमेंट कंटेंट कैसे चेक होगा, वाटर कंटेंट पता चल चुका है, लेट्स से 190 kg पर मीटर क्यूब बेस्ड ऑन स्टेप 1 एंड 2। स्टेप 3 में ये डिसाइड हो गया। स्टेप 4 में हमने वाटर सीमेंट रेशियो डिसाइड कर दिया, लेट्स से 0.6, जो भी कोई वैल्यू आ जाती है। अब इस केस में चूंकि आपको वाटर सीमेंट रेशियो पता है और खुद वाटर कंटेंट भी आपको पता है, तो नाउ यू कैन कैलकुलेट। अगर आप इसको रीराइट करें तो आप C 0.6 यहाँ ले जाएं, C यहाँ लिख ले, तो यू कैन सी दैट C कैन बी कैलकुलेटेड, सॉरी यहाँ पे C कैन बी कैलकुलेटेड, वाटर सीमेंट कंटेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशियो। और ये सारी कैलकुलेशन हम पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट के लिए कर रहे हैं। सो नाउ सीमेंट कंटेंट इज ऑल्सो डिसाइडेड। नेक्स्ट इज, अच्छा कितनी चीजें डिसाइड हो गई, वाटर, सीमेंट और इंट्रैप्ड एयर की एस्टिमेशन हमने कर ली। 2 चीजें रह गई, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। सो इस स्टेप में हम कोर्स एग्रीगेट कंटेंट को एस्टिमेट करने जा रहे हैं। ये लेफ्ट साइड पे आपको यूएस कस्टमरी का टेबल नजर आ रहा है, राइट साइड पे आपको SI का टेबल नजर आ रहा है। लेट्स लुक एट दिस टेबल। जो SI वाला है इसकी हेडिंग है वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। क्या मतलब, अगर मैं 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट बनाने जा रहा हूं तो उसमें कितने मीटर क्यूब होंगे कोर्स एग्रीगेट के। क्लियर, यानी यहाँ जो एंट्रीज लिखी हुई है, मसलन ये 0.66 जो लिखा हुआ है, इसके यूनिट्स क्या हैं, 0.66 से क्या मतलब है। अच्छा चलिए मैं अब इसकी तरफ आ रहा हूँ वापस। लेट्स सी व्हाट आर द इनपुट्स इनटू दिस। ये ग्रीन जो ब्लू में नजर आ रही है, दीज आर द इनपुट्स, रेड वाला इसका आउटपुट है। नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन मिलीमीटर्स, से 19 था आपका। अच्छा यहाँ पे है फाइननेस मॉड्यूलस। फाइननेस मॉड्यूलस को पता है ना, अगर नहीं पता तो बता दो कि नहीं पता। आपने PRC 1 में एक्सपेरिमेंट कर लिया होगा ना, CV एनालिसिस करके, फिर आप नहीं किया हुआ है ना। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे डेफिनेशन सुना लो, वो इक्वेशन से आप सेट करके बना लेते हैं मुझे। चलो ये बता दें, फाइनेंस मॉड्यूलस अगर बड़ी वैल्यू है तो ये कोर्सर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है या फाइनर चीज़ को, बड़ी वैल्यू है फाइनेंस कोर्सर को, यस। अच्छा आपके पास अपने फाइन एग्रीगेट का फाइनेंस मॉड्यूलस होना चाहिए। ठीक, लेट्स से वो 2.40 था, तो आपने 19 और 2.40 को चूज किया तो ये 0.66 पे आपके फॉल कर गया ना। 0.66 क्या चीज़ है, 0.66 मीटर क्यूब ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। ये ऐसे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा ये जो कोर्स एग्रीगेट के वॉल्यूम की बात हो रही है, ये ओवन ड्राई रॉडेड कोर्स एग्रीगेट। ओवन ड्राई का मतलब है कि ये एग्रीगेट जो कि ओवन में ड्राई करके बनाया गया हो, यानी ओवन में उसको ड्राई किया गया हो वो, यानी और दूसरा इसके अंदर जो, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात करने जा रहे हैं ना कि 0.66 मीटर क्यूब ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अब वॉल्यूम चूंकि डिपेंड करता है कि आप एग्रीगेट को सिर्फ ऐसे डाल रहे हैं किसी चीज़ में जिसको हम अनरॉडेड कंडीशन कहते हैं ना, या लूज स्टेट कहते हैं, कि आप एक सिलेंडर है उसमें आपने बस वैसे ही एग्रीगेट डाल दिया, ये लूज स्टेट है, अनरॉडेड। और रॉडेड ये है कि आपने जिस तरह आपने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, वहाँ पे जब एग्रीगेट डालते हैं तो आप उसको टेम्पिंग कर लेते हैं, तो इसको रॉडिंग बोलते हैं। इस यहाँ पे रॉडिंग की बात हो रही है। बल्क डेंसिटी का टेस्ट आपने किया हुआ है ना, बल्क डेंसिटी ASTM C29 वाला,
चलो भूल भी क्यों किया तो है ना, तो उसके अंदर आप दो डेंसिटीज निकालते हैं। एक दफ़ा एग्रीगेट को एक गिवन सिलेंडर में, हमारे पास यहाँ पर भी आ गया, हम यहाँ पर भी उसको करेंगे। आप एग्रीगेट को वैसे ही एग्रीगेट, यानी वो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम हमें पता है, उसमें आप एग्रीगेट भर दें, उसका वजन कर लें, वॉल्यूम हमें पहले ही पता है, लूज स्टेट की बल्क डेंसिटी आ जाएगी। दूसरी दफ़ा आप उसको रॉड करके डाल दें तो रॉडेड डेंसिटी आ जाएगी, वही प्रोसेस। ठीक है, जाहिर है रॉडेड डेंसिटी ज़्यादा होगी ना। तो चूंकि वॉल्यूम की बात करनी थी तो हमें यह स्पेसिफाई करना लाजमी था कि हम स्टेट मेंशन कर दें कि ये जो वॉल्यूम है ये रॉडेड एग्रीगेट का वॉल्यूम है। ठीक हो गया। सो वॉल्यूम ऑफ ओवन ड्राई रॉडेड कोर्स एग्रीगेट इज इक्वल टू 0.66 मीटर क्यूब ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। अच्छा, अब इसमें पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट, हर चीज पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट से हो रही है ना, ये तो कॉमन बात होगी। वाटर कंटेंट 190 kgs ऑफ वाटर पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट, सीमेंट कंटेंट पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। यहां भी हमें इसको पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट में रख रहे हैं, लेकिन हमारा यहां पे ये मसला है कि हमें इस वक्त सिर्फ जो चीज पता चली वो ये है कि मीटर क्यूब ऑफ कोर्स एग्रीगेट हमें पता चला, केजीज ऑफ कोर्स एग्रीगेट अभी पता नहीं है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? यूजिंग बल्क डेंसिटी इन ओवन ड्राई रॉडेड कंडीशन। जो आप उसी एग्रीगेट के ऊपर लैब में ओवन ड्राई करके रॉडेड डेंसिटी निकाल दे, बल्क डेंसिटी, वो अगर आप इसका मतलब है कि हमें मिक्स डिज़ाइन से पहले कुछ मटेरियल प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं जो कि इस प्रोसेस में यूज होती है। तो उसमें से एक चीज़ ये बल्क डेंसिटी है, ओवन ड्राई और रॉडेड बल्क डेंसिटी। लेट्स से हमने उसके ऊपर टेस्ट किया और हमारा आंसर आ गया 1600 kgs पर मीटर क्यूब। अच्छा, इसका मतलब है अब वो जो डेंसिटी का सादा से रिलेशनशिप है मैस और वॉल्यूम, अगर आपको डेंसिटी पता चल गई और आपको वॉल्यूम पता है, ऊपर जो 0.6 मीटर क्यूब आ चुका है, तो हम इसे केजीज में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक दिस। डेंसिटी इन केजीज पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ये वॉल्यूम किस चीज का है? एग्रीगेट का। और ये डेंसिटी किस चीज की है? कोर्स एग्रीगेट की। तो हमारे पास क्या चीज आ गई? केजीज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, और ये सारा कुछ वही पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट हो रहा है। सो यहां से हमारे पास कोर्स एग्रीगेट का भी कंटेंट आ गया है। एक चीज रह गई, वो क्या है? फाइन एग्रीगेट। अब वो कैसे पता चलेगी? इसके दो तरीके हैं, एक को हम कहते हैं वेट मेथड, दूसरे को कहते हैं वॉल्यूम मेथड। दोनों में प्रोसीजर हम एक ही करते हैं। क्या प्रोसीजर करते हैं? हमें ये पता, मसलन वेट मेथड में आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल है वेट मेथड। आपने लास्ट PRC 1 में शायद वॉल्यूम मेथड पढ़ा होगा, यानी जिसमें आप, चले वॉल्यूम मेथड आपने पढ़ा हुआ है ना, तो मैं आपको चलो पहले वॉल्यूम मेथड बता देता हूँ। अगर मैंने 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनानी हो और मुझे उसमें ये पता चल जाए कि सीमेंट का वॉल्यूम इतना होगा, वाटर का वॉल्यूम इतना होगा, कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम इतना होगा, और जो एयर ने वॉल्यूम ऑक्युपाई करना है वो इतना होगा, तो टोटल जो वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है उसमें से अगर मैं ये 4 वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दूं, वाटर, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट और एयर, तो इसका मतलब है रिमेनिंग वॉल्यूम किस चीज का होगा? फाइन एग्रीगेट का। तो वॉल्यूम मेथड के अंदर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में से वॉल्यूम ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स एक्सेप्ट फाइन एग्रीगेट कैलकुलेट, सब्ट्रैक्ट करके हम फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, वन वे। दूसरा तरीका ये है, इसको क्या हमने बस तकरीबन कवर कर लिया है। दूसरा तरीका ये है कि वेट मेथड, उसके अंदर हमें ये चाहिए होगा कि हमारी जो कंक्रीट फ्रेश स्टेट में, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, फ्रेश स्टेट में जो कंक्रीट अभी बिल्कुल फ्रेश बन जाएगी, उस वक्त उसकी फ्रेश स्टेट में डेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, यानी एक तो डेंसिटी है ना हार्ड, जैसे ये कंक्रीट आपके पास ऊपर है, ये हार्ड स्टेट में, ये डेंसिटी और होती है, कम होती है, इसलिए कि बाद में जब पानी एवापोरेट करते हैं तो वो जो पानी का मैस है वो निकल जाएगा। जब वो वेट स्टेट में अभी फ्रेश आप सिलेंडर बना दें, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए कि उसके अंदर जो पानी बाद में एवापोरेट होने वो अभी नहीं एवापोरेट हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा, यहाँ बात जो हो रही है वो फ्रेश, हम फ्रेश स्टेट की बात चल रही है ना अभी, तो फ्रेश स्टेट में जो वेट है पर मीटर क्यूब, वो अगर हमें पता चल जाए, मसलन हमें पता चल जाए अगर आपको उसी कंक्रीट, उसी मटेरियल का जिससे आप अभी मिक्स कर रहे हैं, जिसके साथ मिक्स डिजाइन कर रहे हैं, अगर आपने उसका कई दफा टेस्ट पहले किया हुआ है तो आपको पता है कि लेट से उसकी डेंसिटी इतनी तकरीबन आ जाती है, तो फिर तो ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस टेबल को यूज कर सकते हैं गैस करने के लिए
फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नॉमिनल मैक्सिमम साइज 19 मिलीमीटर है ये, और आप नॉन एयर एंड ट्रेंड कंक्रीट की बात कर रहे हैं, तो उसका फ्रेश स्टेट की जो डेंसिटी है दैट इज 2345 kgs पर मीटर क्यूब, जिसको वो यूनिट मास कह रहे हैं। यूनिट मास का मतलब डेंसिटी, फ्रेश स्टेट की डेंसिटी। तो आपके पास ये एस्टिमेट अगर आ गया कि उसका 2345 kgs पर मीटर क्यूब उसका मास होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो जो 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट है उसका टोटल केजीज आपको पता चल गए, 2345 kgs 1 मीटर क्यूब का वजन। ऐसा ही है ना, ये मतलब है ना इसका, समझ नहीं आ रही? दोबारा बता दूं, जब आप मिक्सिंग करके सिलेंडर भर लेते हैं, उसकी फ्रेश स्टेट की डेंसिटी उसी आसान तरीका है ना, आपने कंक्रीट सिलेंडर भरा, उसको ऊपर तक फिल कर दिया, लेवल कर दिया, उसका आप वजन कर लें, आपके पास वजन आ गया उसका, उसको वॉल्यूम तो मोल्ड का आपको पता है ना इंटरनल, उससे आप डिवाइड कर दें, ये क्या चीज़ है? डेंसिटी। अच्छा, अब के बाद लेकिन चूंकि इस वक्त हमने कंक्रीट बनाई नहीं है, तो हमें कोई ना कोई अंदाजा लगाना पड़ेगा कि जब हम कंक्रीट बना लेंगे तो फ्रेश स्टेट में उसकी ये प्रॉपर्टी होगी, यानी ये फ्रेश स्टेट में डेंसिटी होगी उसकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मुझे पास वो डेंसिटी मैं गैस कर दूं और मेरा गैस इतना ज़्यादा रॉन्ग ना हो, अगर मैं इस टेबल को यूज़ कर दूं तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं डेंसिटी कंक्रीट की कितनी वेरी कर सकती है, 2300 या 2400। तो जब आप ये प्लेन कंक्रीट की बात हो रही है, प्लेन कंक्रीट की हार्ड स्टेट में जब वो बाद में पानी इवेपोरेट हो चुका होता है तकरीबन 2300 के अराउंड होती है, लेकिन ये चूंकि फ्रेश स्टेट में होगा तो इस वक्त थोड़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रही है, 2345, या हो सकता थोड़ी सी इससे भी ज़्यादा हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो एग्रीगेट है वो किस तरह का है। अगर आपको ये पता है कि जो मेरी एग्रीगेट, अगर मेरा 1 मीटर क्यूब ऑफ डेंसिटी का मतलब क्या है, मैं कह रहा हूँ 2345 kgs पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट, इसका मतलब ये कि अगर मेरी 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट होगी तो उसका वजन 2345 kgs होगा। और मिक्स डिजाइन में हम सारी कैलकुलेशन ये कर रहे हैं कि अगर 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनानी है तो उसमें सीमेंट कितने kgs होगा, वाटर कितने होगा, कोर्स एग्रीगेट कितना होगा, यही है ना मिक्स डिजाइन में, हम यही कर रहे हैं ना। तो अगर हमें ये पता चल गया कि हमारी जो कंक्रीट सारे जो इंग्रेडिएंट्स मिलने के बाद उसके 1 मीटर क्यूब का इतने kgs टोटल वजन होगा, अगर ये हमें पता चल जाए या हम गेस कर लें डिपेंडिंग यूजिंग दिस टेबल, तो आप सीमेंट का वेट सब्ट्रैक्ट कर दें, वाटर का वेट सब्ट्रैक्ट कर दें और कोर्स एग्रीगेट, एयर का तो वेट है नहीं, ये 3 चीज़ों का आप वेट सब्ट्रैक्ट कर दें तो पीछे किस चीज़ का वेट बचेगा? फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट डायरेक्टली आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी? वेट, और वो क्या होगा? पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। क्लियर हो गया आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको? इसी डेंसिटी का आपने यूज कर लिया, आपको पता चल गया कि 1 मीटर क्यूब का टोटल केजेस कितने होंगे, जिन चीज़ों के आप कैलकुलेट कर चुके हैं, सीमेंट, वाटर और कोर्स एग्रीगेट, उनका आपने केजीज सब्ट्रैक्ट कर दिए, फाइन एग्रीगेट के केजीज पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट आपको पता चल जाएंगे। ये क्विक मेथड है और कैलकुलेशन भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, और इसके अंदर ये भी आपको नहीं करना पड़ता। अच्छा, अब मैं ये मेथड आपको पता चल गया। जो कोर्स एग्रीगेट, बस ठीक है, रहने दें, इट्स ओके, मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। फाइन एग्रीगेट वाले में क्या करना पड़ेगा? सॉरी, मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम मेथड में क्या करना पड़ेगा, बताओ? इससे पहले भी मैंने बता दिया, सबका वॉल्यूम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, ये जो वॉल्यूम है जिसको आप कह रहे हैं, इस वॉल्यूम का आपको कैसे पता चलेगा? अभी तक तो हमने कहा सीमेंट के इतने केजीज, वाटर के इतने केजीज, कोर्स एग्रीगेट के इतने केजीज, यही कहा है ना हमने। तो हमें तो अभी इन चीज़ों के वॉल्यूम का नहीं पता, तो इसका मतलब है पहले हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी टू नो दी, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वॉल्यूम। ये क्या, इनका एब्सोल्यूट वॉल्यूम कितना होगा? एब्सोल्यूट वॉल्यूम का मतलब आप समझते हैं, जब आप कोर्स एग्रीगेट, मतलब आप कोर्स एग्रीगेट को इमेजिन करें कि मैंने एक सिलेंडर में कोर्स एग्रीगेट डाला हुआ है। एक होते बल्क वॉल्यूम। बल्क वॉल्यूम का मतलब ये है कि मैं कह रहा हूं कि इस एग्रीगेट का वॉल्यूम इंक्लूडिंग द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। मसलन मैं एक सिलेंडर भर देता हूं पूरा टॉप तक, मैं कहता हूं, आपसे पूछता हूं इसका वॉल्यूम कितना है, आप कहते हैं मैंने इस सिलेंडर का जो डाया है इसको कैलकुलेट किया और इसका हाइट कैलकुलेट किया, उसकी बेस पे मैंने वॉल्यूम निकाल दिया। ये जो आप मुझे बता रहे हैं ये है बल्क वॉल्यूम। उस अगर मैंने एग्रीगेट उससे भर दिया ना, आपने जो मुझे उस वक्त वॉल्यूम बताई है, क्या बताया? बल्क वॉल्यूम। एब्सोल्यूट वॉल्यूम इसको कहते हैं कि यार इसमें जो आपने सिलेंडर में एग्रीगेट भर दिया है, ये वॉल्यूम सारा का सारा एग्रीगेट ने नहीं ऑक्यूपाई किया, इसके बीच में वॉइड्स हैं।
अगर मैं वॉइड्स का वॉल्यूम भी बीच में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, सिर्फ जो सॉलिड मेरा एग्रीगेट है उसको वॉल्यूम एड अप हो जाए, तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वॉल्यूम। तो यहां जो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है वो एब्सोल्यूट वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, क्योंकि एयर को हमने अलग से एस्टिमेट किया हुआ है कि 2% उसने वॉल्यूम लेना है, वो अलग से एस्टिमेट किया हुआ। इसका मतलब है जब हम एग्रीगेट के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो हम एग्रीगेट के किस वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे? एब्सोल्यूट वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एयर को हमने अलग से एक चीज मान ली कि इसका भी अपना वॉल्यूम है। तो इसका मतलब है अब जो रिमेनिंग वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब एब्सोल्यूट वॉल्यूम का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अच्छा उससे पहले मैं आपको चलो आपसे पूछ लेता हूं, आपने किया होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का आपने टेस्ट किया हुआ है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट कहां किया? लाहौर में किया। TRC 1 में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट आपने किया हुआ है ना? यहाँ लाहौर में किया या सॉरी नारवाल में किया या लाहौर में? लाहौर में किया हुआ है। किस लैब में किया? अच्छा फिर इसका मतलब आपने किया। मैंने कहा अगर कंक्रीट लैब कह दिया तो फिर इसका मतलब आपने नहीं किया। ट्रांसपोर्टेशन लैब में अगर आप गए हुए तो इसका मतलब आपने किया हुआ है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट का मतलब क्या है? मैं कहता हूँ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कोर्स एग्रीगेट की आ गई 2.7, इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? अच्छा डेंसिटी, ठीक है मैं ये मान लिया डेंसिटी इसका 2.7 टाइम्स वाटर से ज़्यादा है, ये बात मान ली। यानी इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ दिस एग्रीगेट इज इक्वल टू 2.7 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर तो एक स्टैंडर्ड चीज़ है, उसकी बात हम नहीं कर रहे। ये जब डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट कह रहे हैं, डेंसिटी क्या होती है? मैस और वॉल्यूम। ये जो आप डेंसिटी कह रहे हैं इसके अंदर वॉल्यूम जो आप ले रहे हैं वो वॉल्यूम सिर्फ उस सॉलिड का वॉल्यूम है या उसमें बीच में जो वॉइड्स होते हैं वो भी शामिल है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन की बात हो रही है। देखो मैथ्स आपने कहा डेंसिटी 2.7 स्पेसिफिक ग्रेविटी का आपने यहाँ तक मतलब ठीक मुझे बता दिया, मुझे समझ आ गई कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज इक्वल टू 2.7 का मतलब है कि ये एग्रीगेट का जो डेंसिटी है इट इज 2.7 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। एग्री? जब हम कह रहे हैं कि इसकी डेंसिटी 2.7 टाइम्स ऑफ वाटर है तो ये जो कोर्स एग्रीगेट की डेंसिटी हम ले रहे हैं उसके अंदर मैस और वॉल्यूम जो आप कर रहे हैं उस वॉल्यूम में किस चीज का वॉल्यूम शामिल है? खाली एक पार्टिकल जो सॉलिड वॉल्यूम है वो शामिल है या जो बीच में वॉइड्स हैं वो भी शामिल हैं? बेटा वॉइड शामिल नहीं होते, वो तो जब वॉइड शामिल हो जाए तो फिर तो उसको बल्क डेंसिटी बोलते हैं। अगर वॉइड शामिल हो जाएं तो फिर तो उसको बल्क डेंसिटी बोलते हैं। आपने जब उसको डिप करते हैं ना, उसको आपने प्रोसीजर थोड़ा सा बहुत याद तो आप उसको थोड़े अप एंड डाउन करके ताकि एयर वॉइड जितने भी हैं वो भी निकल जाए, बबल्स अगर बने तो वो भी निकल जाए। सिर्फ आप वॉल्यूम देखते हैं, वो वॉल्यूम भी कैलकुलेट भी आप इमर्शन मेथड से करते हैं ना, क्योंकि मैं आपसे कहता हूँ ये आप एग्रीगेट पड़ा हुआ है, इसका आप मुझे एब्सोल्यूट वॉल्यूम बताएं, नहीं बता सकते आप। अंदाजे से आप वो कर लेंगे लेकिन आप मुझे एग्जैक्ट नहीं बता सकते। चले थोड़ा सा मैं उधर उधर ज़्यादा चला जा रहा हूँ इसलिए शायद डिबेट ज़्यादा हो रही है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था स्पेसिफिक ये कुछ टर्म्स है ना, मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था तो ये नहीं, उससे भी शायद लास्ट टाइम तो मैंने इन टर्म्स को एक पहले जब मैं एग्रीगेट को शुरू कर रहा था तो मैंने सारी वो एक दफ़ा लिस्ट डाउन कर लिया था ताकि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, बल्क डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और भी बहुत सारी होती है, ओवन ड्राई कौन सी होती है, एयर ड्राई कौन सी होती है, फिर सैचुरेटेड सरफेस ड्राई हुई भी एक होती है, वो वाली डेंसिटी कौन सी होती है। तो मैंने अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में देख सकूं, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट का मतलब अब आप समझ लें। अगर मैं एक एग्रीगेट पार्टिकल यहाँ से उठाऊं और मैं कहूँ इसका इतना मैस है, इतना इसका वॉल्यूम है, ये मैंने मैस और वॉल्यूम कर दिया, ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब आप इसको छोड़ दें कि मैं वो मैस वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो मैं इमर्शन मेथड मैंने आपको बता दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का ये मतलब है, यानी सिर्फ जो आपने वो उठा लिया ना पार्टिकल, उसका मैस और सिर्फ उसका वॉल्यूम,
किसी इंटर पार्टिकल स्पेस की बात ही नहीं हो रही इसमें। ठीक हो गया? यानी इसका मतलब ये कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि मैंने कितना उसको कंपैक्ट करके रखा है, वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी वो जिस मर्जी स्टेट में होगा वो उसकी एक प्रॉपर्टी रहेगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी विल नेवर चेंज अनलेस कि आप उसका, हाँ ये चेंज हो सकता है कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर दे, मास थोड़ा बढ़ जाए, उसमें पानी भी आ जाए। इसी वजह से फिर हमें डिफाइन करना पड़ता है कि ये ओवन ड्राई स्टेट में है या सैचुरेटेड सरफेस ड्राई स्टेट में, या इससे भी वो आगे एक स्टेट होती है उसको वेट स्टेट बोलते हैं, कि अंदर भी पानी भरा हुआ है और ऊपर सरफेस के ऊपर भी वाटर फिल्म लगी हुई है, वो सबसे ज्यादा होती है। बहरहाल मैं अभी उसमें नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि एब्सोल्यूट वॉल्यूम निकालने के लिए हमें बल्क डेंसिटी नहीं चाहिए, एब्सोल्यूट वॉल्यूम निकालने के लिए हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमें एब्सोल्यूट वॉल्यूम कैलकुलेट करना है सीमेंट का और कोर्स एग्रीगेट का। अच्छा, वाटर का कितना होगा जी? वाटर का कितना होगा? अगर मैं आपको कहूं कि 190 kgs ऑफ, मुझे 190 kg ऑफ वाटर की मैं बात करूं, 190 kgs ऑफ वाटर, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? नहीं, मुझे बस आपने सिंपल आंसर बताना। मैं कहूं कि 190 kgs ऑफ वाटर है, उसका वॉल्यूम कितना होगा? मीटर क्यूब में बताना है। सादा सा सवाल है, 190 kg से पानी का, मैं कह रहा हूं इसका वॉल्यूम कितना होगा? क्या? मीटर क्यूब। सिंपल सी बात। वाटर में तो कोई वॉइड्स कोई चीज वाली बात नहीं है ना, वाटर इज वाटर। वाटर में तो कोई पानी हवा अंदर जा सकती है, लेकिन हम वाटर कह रहे हैं विदाउट एयर, जिसके अंदर इनट्रैप्ड कुछ ना हो जिसके अंदर, तो वाटर में तो कोई और चक्कर ही नहीं, बात उसको डेंसिटी से डिवाइड करते हैं। लेकिन अच्छा, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? हैं? वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये इतना आप आराम आराम से क्यों कह रहे हैं? वन, एक दो बंदे कह रहे हैं वन, बाकियों को शक है? हैं? नहीं, बाकियों को शक है? मैं इसके आपको सिंपल से वो बना के दे दूंगा। असल में उसने डायरेक्ट फार्मूला निकाल दिया, मैं आपको बेस से बना दूंगा। मैं आपको यहाँ से शुरू कर लूँगा। वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब है माइनस वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, सॉरी कोर्स एग्रीगेट वगैरह वगैरह। लेकिन सिंपल है, एक मैं आपको ये बता देता हूँ कि मसला अगर मैं वॉल्यूम ऑफ एब्सोल्यूट वॉल्यूम निकालना हो ऑफ कोर्स एग्रीगेट, हमने अभी बात कर ली है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर मैं अब एस डी यूज कर लूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए,